Okay, now we are starting with question number 7. Question 7 is a closed cylindrical tank of radius 7 meter. Closed cylindrical tank. Okay? Radius is of cylinder is given 7 meter. Height is given 3 meter. Is made from a sheet of metal. How much sheet of metal is required? Okay. How much sheet is required? That means हमें इसके faces बनाने हैं. अब क्या बनाना है? LS से बनाना है, TS से बनाना है. It is given closed. Closed है, that means you have to make all the 3 faces. ठीक है, टैंक को हमने close है, that means bottom तो cover है, upper जो है वो भी cover करना है, तो all the 3 faces. If you are finding making all the 3 faces, that means material required is equal to TSA. सारे faces को बनाना है. So material required for closed cylindrical tank is TSA of cuboid with TSA of cylinder, and formula is 2 pi r into r plus h. For values pi 22 by 7, r radius 7, height 3. 7 से 7 cancel. 40 440 meter square. So material required is 440 meter square. Okay, question number 8. The lateral surface area of a hollow cylinder is 4224 centimeter square. It is cut along its height and formed a rectangular sheet of width 33 centimeter. Find the perimeter of the rectangular sheet. See, the sheet is a rectangular sheet. If we will fold this or roll this like this, then we'll get a cylinder. This is a cylinder, and while we are making it, we are making open cylinder. That means सिर्फ कर्व फेस बनना है. ठीक है. अब गिवन है कि एक सिलेंडर है जिसका लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया गिवन है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर. इट इज कट अलॉन्ग इट्स हाइट. इस सिलेंडर को अगर हम कट करें अलॉन्ग दी हाइट, ये सिलेंडर की हाइट है, अलॉन्ग दी हाइट वी आर कटिंग दिस एंड वी आर गेटिंग अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ विड्थ 33 सेंटीमीटर. Find the perimeter. Perimeter of rectangle is 2 into L plus B. Means अगर हमें लेंथ और पता चल जाए तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं. ब्रेड्थ तो ऑलरेडी उसने दे दिया. जब हम उसको कट कर रहे हैं तो रेक्टेंगुलर शीट मिल रही है जिसकी ब्रेड्थ क्या है 33 सेंटीमीटर है. हमें उसकी लेंथ और फाइंड आउट करनी है. देन विल फाइंड आउट perimeter. Okay. Now tell me, if this curved surface area of cylinder is given and we are cutting it and forming a rectangular sheet. ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है इसको हमने कट करके रेक्टेंगुलर शीट बनाई, तो ये जो CSA और LSA सिलेंडर है वो एरिया ऑफ शीट के इक्वल ही होगा. ठीक है. इस शीट को हम अगर फोल्ड करेंगे तो सिलेंडर बन जाएगा, इसको कट करेंगे तो रेक्टेंगुलर शीट बन जाएगी. दोनों का एरिया तो सेम ही होगा. शीट से सिलेंडर बनाएंगे, सिलेंडर से शीट बनाए, दोनों का एरिया क्या है सेम है. दैट मीन्स ये जो LSA गिवन है सिलेंडर का, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट. सो लेट्स स्टार्ट. इट इज गिवन LSA ऑफ cylinder is 4224 centimeter square. Now, it is cut according to the question. It is cut along the height and a rectangular
The cylinder is cut along the height and a rectangular sheet of width 33 centimeter is formed. So area of rectangular sheet is equal to LSA of cylinder. क्लियर? जो भी सिलेंडर का LSA होगा उतना ही क्या होगा रेक्टेंगुलर, क्योंकि LSA से ही तो हमारी क्या बनती है, शीट बनती है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, and LSA is given 4200, 24, width is given 33, find out length 4224 by 33, divide it, and when you will divide 9, 2, 16, 6, 128. So length is 128 and unit is centimeter. So length of rectangular sheet is 128 centimeter. And we have to find out perimeter. So perimeter of rectangular sheet is 2 into L plus B. Length 128, breadth 33. Solve this. This will be the answer. Fine. Question number 9. A road roller takes 750 complete revolutions to move once over to level a road. Find the area of the road if the diameter of road roller is 84 centimeter. Diameter of road roller is 84 centimeter. Length is 1 meter. Okay. रोड रोलर इज सिलेंड्रिकल इन फॉर्म, ये रोड रोलर है, इसका डायमीटर गिवन है और लेंथ है। अब जो लेंथ है रोड रोलर की, वो सिलेंडर की क्या होगी, हाइट, दैट इज हाइट ऑफ सिलेंडर इज गिवन 1 मीटर, यू कैन चेंज दिस इनटू सेंटीमीटर, 100 centimeter. Question is, this road roller takes 750 complete revolutions to move once over to level a road. इस रोड रोलर को एक रोड को जो है लेवलिंग करनी है और मुझे कितने राउंड्स में लेवल करना है उसको, 750. सपोज अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ये जब रोड रोलर मूव करेगा, जब इसके 750 रेवोल्यूशंस कंप्लीट होंगे तब क्या होगा, पूरा रोड कवर हो जाएगा. दैट मीन्स एरिया ऑफ रोड कितना होगा, जितना इस रोड रोलर ने 750 रेवोल्यूशंस में कवर किया है, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रोड. तो अगर हम इस रोलर का एरिया फाइंड आउट कर लें जितना उसने 750 रेवोल्यूशंस में कंप्लीट किया है, दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ रोड. तो फर्स्ट विल फाइंड आउट एरिया कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन, और 1 रेवोल्यूशन में कितना एरिया कवर होगा. अगर यहाँ से स्टार्ट करें, सपोज हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, जब इसने एक कंप्लीट किया तो कितना एरिया कवर किया, जितना उसका CSA है. सो area covered in 1 revolution will be, so area covered in 1 revolution is equal to LSA of cylinder. So area covered in 1 revolution is equal to LSA of CSA of cylinder. क्लियर. रोड रोलर जो हमारा सिलेंडर की फॉर्म में है, एक रेवोल्यूशन जब उसका कंप्लीट होगा तो जितना उसका CSA है उतना वो एरिया कवर करेगा. तो एरिया कवर इन 1 रेवोल्यूशन इज LSA और CSA. फॉर्मूला इज 2 pi RH, pi 22/7, रेडियस, डायमीटर इज गिवन. तो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट रेडियस. रेडियस हाफ ऑफ डायमीटर 42 centimeter.
into height 100. 760. 44 into 600. 24. 264 centimeter square. This is area covered in one revolution. And how many revolution it is taking? 750. So area covered in 750 revolutions. Multiply 750 into 264, 100. Okay. Now multiply. And when you will multiply, 3 zeros and 264 into 75, 5 fours are 20, 30, 32, 28, 244, 4, 3. Centimeter square. Now this is area covered in 750 revolution and area जितना उसे 750 revolution में complete किया वो area कितना होगा? area of row. So this is equal to area of row. ठीक है, जितना उसने 750 revolution में cover किया उसने उस रोड को लेवल करने में 750 राउंड्स लिए हैं, तो इतना ही क्या होगा? एरिया ऑफ रोड होगा। अब दिस इज इन सेंटीमीटर स्क्वायर। अब रोड का एरिया है दैट मींस 7 को स्मॉलर यूनिट में तो हम करेंगे नहीं, तो उसको हम बिगर यूनिट में चेंज कर देते हैं, मीटर स्क्वायर में। हाउ टू चेंज सेंटीमीटर स्क्वायर टू मीटर स्क्वायर? आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। 1 मीटर स्क्वायर इज 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर मीटर स्क्वायर में चेंज करना है, सो डिवाइड बाय 10,000। डिवाइडिंग इट बाय 10,000, 40 से 40 कैंसिल, 1980 मीटर स्क्वायर. This is area of road. Clear? And now the last question of this exercise. And this is last question of your PT3 syllabus also. In PT3, you are to prepare only 11.2 and 11.3 exercise. Okay, so the last question is, a company packages its milk powder in cylindrical container whose base radius, this is a milk container, cylindrical container, base diameter 14 cm. Diameter is given 14 cm, height is 20 cm. Now, company places a label around the surface of the container as shown in the figure. If the label is placed 2 cm from top and bottom, what is the area of the label? एक कंटेनर है, उस कंटेनर सिलेंड्रिकल, उस पे लेबल लगा हुआ है बाय लीविंग 2 सेंटीमीटर फ्रॉम टॉप एंड बॉटम. ठीक है, अब सपोज ये अगर हमारा कंटेनर है, सिलेंड्रिकल कंटेनर, इसमें हमने लेबल लगाया बाय लीविंग 2 सेंटीमीटर फ्रॉम टॉप एंड 2 सेंटीमीटर फ्रॉम बॉटम. इसे लीव करके अगर हम लेबल लगा रहे हैं, अब ये टोटल हाइट इज गिवन 20 सेंटीमीटर, टोटल इज 20. फाइंड द एरिया ऑफ लेबल. अब लेबल का एरिया फाइंड आउट करना है. लेबल की हाइट कितनी है? रेडियस तो सेम ही होगी. लेबल की हाइट 2 सेंटीमीटर टॉप से और 2 सेंटीमीटर बॉटम से हमने लीव करनी है. तो फर्स्ट वी फाइंड आउट रेडियस ऑफ लेबल. लेबल इज ऑल्सो सिलेंड्रिकल इन फॉर्म बिकॉज इसके ऊपर हम लेबल लगा रहे हैं, तो लेबल की भी फॉर्म क्या होगी? इसके ऊपर बेस करेंगे तो सिलेंड्रिकल ही होगा. रेडियस 14/2, 7 सेंटीमीटर. एंड नाउ हाइट. हाइट ऑफ लेबल
ऑफ लेबल. एरिया ऑफ लेबल फाइंड टीएसए और एलएसए. अगर मैंने इस पे लेबल लगाया, इस चौक पे किसी भी सिलेंडर पे लेबल अगर मैंने लगाया है, ऐसे लेबल है, ये सपोज लेबल है, इसके अंदर जो है वो बॉटम है, तो लेबल को हमने बॉटम और टॉप पे तो नहीं लगाया, सिर्फ कर्व फेस पे ही लेबल पेस्ट किया है, तो एरिया हेयर विल फाइंड आउट एलएस. सो एरिया ऑफ लेबल इज इक्वल टू एलएसए और सीएसए ऑफ सिलेंडर एंड फॉर्मूला इज 2 pi RH. Pi into 2 by 7, radius R is 7, height is 16. 44 into 16 centimeter square is area of label. With this, your 11th chapter is complete. For PT3 only. In PT3 11.2 and 11.3 you will prepare. Okay. So now we have completed our PT3 syllabus.